Yes, so Satya, my screen is visible. Hello, am I visible to you? Yes, sir, visible. Yes, sir. Okay, great. Thank you. Yes, sir. So we are going to start a new course today, and you all are warm welcome once again. So we are going to live together for next 45 days. And in these 45 days, we are going one step ahead. We are taking one step advance. And in this advanced course, which is 45 days long, there are 18 lessons, 18 lesson hai. And the same format would remain for the classes, 3 classes a week, and Monday, Wednesday, Friday, 6 p.m. to 7 p.m. All almost all classes would be live. In case the lesson is easy, then we would post recorded lesson. Otherwise, the classes would happen live on Zoom. And assignment condition will remain same as our previous. Every lesson would be practical lesson wherein you have to learn something, and then post learning you have to do certain assignments which will be given after every lesson. All the lessons would be recorded, and the recording will be posted next day before afternoon, and you can go through the recording. In case you could not attend it, then you can go through a recording. And if you attended the lesson, even after, if you think that you are not clear, you can go through the recording, or the WhatsApp group support will remain there the same way जैसा हम previous classes में करते आए हैं. And हम में से तीनों लोग हैं. We have 3 people here, and all 3 are from our previous batches, so you are familiar with so many things. In this particular course, what we are going to cover, so that is little advanced thing. In lesson 1, we are going to cover what is digital marketing and why I am learning it. This is a basic lesson, and in which we are going to learn the intro and the gap analysis. The gap analysis will be also in the short form. So what we have for digital marketing in our hand, and what we require for online marketing to boost our business. So that gap we require to analyze during our previous 3 lessons. So some part of this analysis would be discussed today in today's lesson, and in next 2 lessons we would be discussing some part of gaps. So our purpose for gap analysis is to identify those areas wherein we have to work more, so that we can get effective ROI from this digital marketing advanced course. So that is lesson 1. And the lesson 2, day after tomorrow, we are going to discuss the wheel of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग के पूरे साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं in the whole digital marketing portfolio, what are its factors and aspects. So that would be discussed in detail. And in lesson 3 to 5, there would be 3 lessons wherein we would dedicate all those 3 classes to lead generation, towards learning how to generate lead, more leads for our business. What are techniques, what are tactics and secrets, and what are trends in the market, how to generate more leads. So that would be discussed in 3 lessons. After that, there would be 4 lessons. And in those 4 lessons, we are going to discuss our online office, which is website. So website would be discussed in detail, how it is required for our business, and what we have in our hand, and what improvement we should do in for it. So that would be discussed in detail, technically and commercially both.
So the website part in detail would be covered. The lead generation part would be covered in detail. And there would be two more classes in which we would cover the landing page, which is a sub part of website. Means website and landing page both works hand in hand. So this landing page is also a new trend in the market, wherein this is the requirement for more lead generations. So how we can generate it, what is its uses, and how we can use it for our purposes. So that would be discussed in detail. In lesson 12th and 13th, the advanced form of search engine optimization, how we can uh, do SEO for our website, how we can do SEO for the infrastructure we have online. Means in case we have website, then how we to do SEO for our website, and in case we have YouTube channel with us, then how we can do SEO for our YouTube channel. So those things would be discussed in lesson 12th and 13th. In lesson 14th, we are going to discuss search engine marketing. So how this search engine marketing happens, so that would be discussed. And in next 2 3 lessons, social media marketing, means the whole structure of social media, means what are the good factors, good applications, good channels of social media which are in trend, that would be discussed. So this way, this course will get finished in 18 lessons, and that can give us a great detail, great in-depth knowledge and hands-on experience of it. And today's lesson, आज के lesson में, we are going to discuss what is the gap we have in your hand, in our hand, what is need and what is availability. So that in short will be discussed with the introduction of digital marketing. First of all, audience, I want to thanks you for this particular session. Make sure in these 45 days, the course is digital marketing advanced, and it is divided into two sections: digital marketing advanced level 1 and advanced level 2. Each is of 45 days. First 45 days, then next 45 days. But still, I will not say it is very much professional. Means if you want to learn digital marketing more in depth, then Yes, Satya, your voice is not there. Are you there? yes, sir. Great. Please continue. Yes, sir. So these the two programs, digital marketing 1 and digital marketing, these both are of 45 days plus 45 days, mean 90 days. In these 90 days, you will get to know about the how to do the digital marketing by your own. But if you want to learn, if you want to be a digital marketing trainer or digital marketing teacher or digital marketer, then then you have to do the particular specific courses. Suppose YouTube management is there, Facebook ads is there. Each course is of duration of 1 month. Suppose WhatsApp course is of approx 1 month. So in these two programs, especially in digital marketing, DMI level 1 and DMI level 2, both are advanced courses. In this for 90 days course, you will know all the aspect of digital marketing by which you can generate your own leads. But by this training, you can't become a digital marketing trainer or digital marketing teacher. This thing I want to clear you so that you will be very much aware of that. In this training program, just I want to have some opinion from your side, because this whole program is require a lot of training, lot of practice, and I request all this audience to be regular in their assignment. To make suggestion, I have just one suggestion. If you do not able to submit, so now my voice is audible, sir. Yes, little good than the previous version. Uh, the quite is better now, sir. Yes, yes, it is little better. अभी से आवाज ठीक है सर? अभी सत्या ठीक है आवाज. Okay, ठीक है सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, make sure the all the participant, हाँ,
all the participants should have pledged. If they do not able to submit the assignment, they can pay 50 rupees fine. This 50, I think so. It is rest. It is not compulsion. It is my suggestion to all of you. If you do not able to submit the assignment, because this whole program is based on is required practice, and once you do not practice up to 3 or 5 classes, I guarantee you will not able to learn anything in the rest of the classes. Not clear, Satya. Those because most of you have did our any 1 or 2 courses. This course is more rigorous. I request all the audience. अभी से आवाज ठीक है सर मेरी? बीच में क्रैक हो रही है, चलिए. नेट का दिक्कत. लोकमान जी, ऐसा है, आप जो भी होमवर्क दे रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल मेथड जो है ना वो दे दिए तो हम कर लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है. मगर आप कैसे करने का है वो एक एग्जाम्पल दिए तो अच्छा. श्योर. देखिए सर, मेरा एक ही सबमिशन है. मेरी वॉइस अभी आ रही है सर? यस, आ रही है. हाँ, कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है. तो मेरा एक ही सुझाव है कि अगर हम लोग ये डन कर दें, हमें असाइनमेंट सबमिट ही करना है, ठीक है ना, या तो आप अपनी तरफ से 50 रुपीज का फाइन आप मान जाए, या हमें कहें अगर आप 3 या 4 क्लासों तक लगातार असाइनमेंट सबमिट नहीं करें तो कुछ ना कुछ छोटा सा या तो फाइन रखें या कुछ भी करें, क्योंकि मींस क्या है, हमारा पुराना अनुभव है इस क्लास को थोड़ा सख्ती हमें करना पड़ेगा. तो जो भी आप अपने साइड से करें क्लास के एंड में भी बता दें, ताकि आप रेगुलरिटी इसमें मेंटेन, कि जितने प्रोग्राम हुए हैं रेस्ट, जितने प्रोग्राम वी हैव डेट, जितने इससे सबसे ज्यादा रेगुलर प्रोग्राम ये है. तो यू रिक्वायर टू हैव सम पेशेंस एंड प्रैक्टिस टू डू, ताकि आप रेगुलर हो पाए. मेक श्योर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो दैट इन 90 मिनट्स जो 45 डेज है इसमें कुछ ना कुछ आप ऐसा सीख के जाएं जिसमें अपना काम आप खुद स्टार्ट कर पाए. चलो, थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. And so introduction and gap analysis. In gap analysis, we are going to discuss where are we now, where do we want to be, and what do we get there. हम अभी कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और वहाँ कैसे पहुँचेंगे. और डिजिटल मार्केटिंग का जो एडवांस कोर्स हम कर रहे हैं, हाउ दिस कैन help us to get there. So this whole thing would be discussed today. So the first question arises here, what is digital marketing? And I expect that you all know the answer of it because you all have taken one course from Margdarshan Guru and you are working already, you are doing digital marketing. So digital marketing is marketing through electronic devices. Very sweet and simple answer. So how you market yourself, your product, your services online. So now offline trends are lagging behind, especially in this Corona period, COVID-19. So marketing on online channels is on boom and it is in trend. So now, which is in trend? The marketing, business promotions on and through electronic devices, electronic channels, that is called digital marketing. And why this is important for my business, your business. So that is and why it is so popular nowadays, because internet has came in the reach of almost everyone. Now every second person or every third person is carrying and having a smartphone which is connected through internet. So the masses are connected online, and even those are not so literate, good literate people, they are also able to run, they are also able to access YouTube, WhatsApp,
and telephone calls. So if they are on YouTube, Facebook, and WhatsApp, it means the these channels are so user friendly, wherein everyone can get access of it, everyone can get benefit from it. So that's why the digital marketing is in scope, it is in trend, and this trend and scope is going to increase in next few years more and more. And people are accessing internet for news, shopping, and social interactions. People have access to information anytime and any place they want it. Means availability of internet is so good in our country and countries around, and that's why it is becoming so important. Education and consumer awareness is spreading successively. So on the basis of these all aspects, this our digital marketing is becoming useful and need of our today for the businesses. And because we all are some kind of in some kind of businesses, that's why it becomes important to us to learn it in advance so that we can get benefit through it. Now let's be little specific and personal. Why myself means you individually are learning this. So let's decide it and identify what are the purpose or the purposes to learn it in advanced form. So I'm putting some purposes on my screen, so you can identify any one or more than one or couple of them for yourself. So why me means why I'm learning this digital marketing, मैं क्यों सीख रहा हूं इसको, मेरे क्या काम आने वाली है. तो उन रीजंस को मुझे स्पेसिफाई करना है, मुझे उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड स्पेसिफिकली, नॉट इन जनरल. सो द फर्स्ट थिंग इज, so that is one example, to get familiar with the marketing channels. This may be one region. So what are marketing channels? Different marketing channels, distinguished marketing channels, those are in trend, and how they work, and how, if I want, then how I can work upon them. That may be one reason. And the second reason may be to start a business in case you are thinking to start something. So that may be your one reason to promote that particular business. And third one, to promote your business brand. So whatever business brand you already have in your hand, you have started something, whether you are in initial or infancy stage or you are running it. So that may be one reason. Next is to increase sales revenue. In case you are running a business, so now you think that the more sales revenue should come to you, then what are the channels on which you promote your business and you can get more sales revenue? So this may be your one reason. And next is to build a better relationship with customers or prospects. In case you have your customers in hand, then how to connect with them effectively, easily, and repeatedly. And if you have database of business prospects, then how to connect with them, how to develop relationship with them, then how to convert them into leads, and how to convert them in customers. So that may be one region. And better ROI. Better ROI means now you are investing something on marketing and promotions and getting something out of it. So you want to improve this ROI, whatever you are spending and whatever you are earning, so that you want to improve. So this may be one of the reason, or you may identify the more than one regions from this. So this is your first exercise today. So you have to identify exactly and specifically what do you want out of this. So that is one thing. Now I'll after this 2-3 slides, I'm going to put some examples of this so that you can know better, or maybe to make a better career. In case you want to make a career, you want to get some career opportunities, you want to make career in digital marketing, so that may be one reason.
or any other region in case you have. So that should be there. So today's exercise is identify and establish your regions. Identify and establish your regions. So after certain slides, I'm going to put before you what are its regions and what are its examples. So let's start now. So far, in case you have any query or questions, you can ask, please. So now let's start in this particular course, because this is advanced course. So we are going to start from scratch how to run a business, and for a successful business setup. So what we require, those basics also would be discussed in. So in this lesson, we would discuss what is the need, what is our availability, and what are gaps. For any business to make the business successful, three basic things are required, and three basic things should happen in the required manner and a predefined manner. So what are these three great needs? So the first one is business planning. Means you analyze everything before start. You put all the things on your planning stack, wherein what is your strength, what is your objective, what is your I mean uh, weaknesses, what opportunities you have, so what products you want to sell, what services you want to sell. So that बेसिकली यू हैव टू प्लान इन एडवांस. वो सारी चीजें आपको अगर प्लानिंग भी पहले ही कर ली जाए, सो दैट फेज, दैट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड बिजनेस प्लानिंग, एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी. एंड द सेकंड थिंग इज बिजनेस फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन. Business framework and organization means after planning, so you would require some infrastructure, you would require certain things, you would require certain resources. So those required resources do you have in your hand, or what do you require to get on, and what infrastructure in terms of physical or online or virtual you would require, whether you have in your hand, and what capital you would require, financial capital you would require to work, so that in you have in your hand. So this whole physical or virtual requirement to make a infrastructure, to make a framework, to make a ecosystem for your business. So that is the second thing. And now when you have a planning in your hand, and you have an ecosystem, you have a framework, you have infrastructure, you have the whole organization in your hand, then you want to promote, you have to promote this to the outer world, to the targeted clientele. In targeted clientele, putting yourself and promoting yourself, advertising yourself, sell yourself or your product or services. So that would require a marketing plan and execution of that. So this is the action phase actually. And the first one is planning phase, and the second one is preparation phase, and the third one is action phase. So in these next lessons, we are going to discuss in detail marketing and execution. So this business planning is business framework and organization. We are just going to review whatever we have in your hand, because in case we are going to fly, then we should prepare on the ground what is required to fly. So that is the basically purpose of these things, the lesson 1 and lesson 2. So that what is our business planning? So what gaps are there? So we should identify them and we should start working on them, and what infrastructure we actually require, and what infrastructure we have in our hand. So, and what are gaps we should think, we should start thinking to eliminate those gaps. So this whole requirement is mandatory and essential to run a good business setup. Now, going ahead, business planning, business framework,
and marketing. Now, let's start the business planning because we are going to discuss in detail the planning means that is. यस संतोष जी, चलिए हिंदी में भी बात करते। संतोष जी का इनपुट है कि हिंदी में भी बात करें, तो आज हम संतोष जी बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एडवांस पर। सो आपने लेट ज्वाइन किया है। डिजिटल मार्केटिंग एडवांस हमारे बाकी से एक एडवांस फेज में है, एक स्टेप आगे जाएंगे। इस स्टेप में हमें बिजनेस का पहले जो बेसिक रीड है, बैकबोन है, वो बेसिक रीड को भी हमें एक बार उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारी बेसिक रीड कितनी स्ट्रांग है। और एक बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा बिजनेस सेटअप। Guys, stop. यस प्लीज। यस, एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। एक अच्छी सी प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम, और वो स्पेसिफिक इकोसिस्टम आपका अपना। तो जो प्लानिंग के बेसिस पे जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस को रन करने की चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज और वर्चुअल रिसोर्सेज, वो सारा हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे को एक बार फिर पूछ सकते हैं। वो हमारा अगर इन प्लेस है, प्लानिंग इन प्लेस है, तो उन दोनों चीजों को हम एक कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, उनके गैप्स को मिनिमाइज करने के बाद, उनके गैप्स को एलिमिनेट करने के बाद फिर हम मार्केटिंग प्लान की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारी बैकबोन स्ट्रांग होगी तो फिर हमारी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे। तो हम अगले पहले ये शुरू के कुछ लेसन्स में हम अपनी बैकबोन को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसको उसके गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन गैप्स को मिनिमाइज करने के लिए काम करना शुरू करेंगे। और साइमल्टेनियसली, पैरेलली, वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस एंड डिस्टिंग्विश्ड मार्केटिंग चैनल्स विच आर इन ट्रेंड। उनको हम सीखेंगे और उन पर काम करना एक एक करके हम सीखते जाएंगे और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएंगे अपने बिजनेस सेटअप पर। तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो, जैसे सत्या ने बताया था कि थ्योरी में ये बहुत कम होगा, हम इसे प्रैक्टिकली अपने बिजनेस पर अप्लाई करते चलेंगे। और जो चीज़ अप्लाई होगी तो वो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। और अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे उसको तो वो चीज़ हम भूल जाएंगे। वो रियली इसका पर्पज नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इस कोर्स में जुड़े हैं वो सब किसी न किसी बिजनेस में या तो हैं या वो बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, तैयारी में है। तो वो इसको प्रैक्टिकली करते जाएं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि उन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है बिजनेस प्लानिंग। और बिजनेस प्लानिंग में बेसिकली चार चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला कि आपका उद्देश्य क्या है, दूसरा आप क्या बेच रहे हो, क्या बेचना चाहते हो, एंड तीसरा आपकी खूबियां क्या हैं, लोग आपको क्यों खरीदेंगे, और चौथा आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है उसे बेचने की और उसकी जरूरत क्या है। तो ये चार चीजें हैं। मैं इन चार चीजों में एक एक करके बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा ताकि आप बहुत इजीली इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। तो पहली एक्सरसाइज है, व्हाट इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपका अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो तरीके से हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस में इसलिए होते हैं कि पैसा कमाना है, और कुछ लोग बिजनेस में इसलिए होते हैं कि उनको कुछ करना है। कुछ करना का मतलब उनके पास अपनी स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर ली हैं। उन्हें लगता है कि उनका कुछ पैशन है, उन्हें लगता है उनकी कुछ हॉबीज हैं, उन्हें लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक चेंज ला सकते हैं, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, लोगों में चेंज ला सकते हैं, प्लेनेट पे चेंज ला सकते हैं, और वो बिजनेसेस में चेंज ला सकते हैं। तो वो जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, और मनी उसका बाय प्रोडक्ट होगा। मनी उसका बाय प्रोडक्ट। तो ये दो चीजें हैं। आपका अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम अपने एग्जांपल से आपको रिलेट करते हैं कि क्योंकि हमने जो अपनी प्लानिंग की थी, वट एवर बिजनेस प्लानिंग वी हैड बिफोर स्टार्टिंग आर दिस बिजनेस, सो व्हाट इट वाज and how we developed the infrastructure and what marketing plan we started. Since we got a good progress, good success in our endeavors, business endeavors, so I'm going to put one example of this just to have insight, just to have an example of this. आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए
हमने कैसे उसको प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे मार्केटिंग प्लान बनाया। तो हम एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। सो एक एग्जांपल है कि बाय 2031 वी वांट टू ट्रेन 10 lakhs पीपल। 2031 से पहले हम 10 लाख लोगों की जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं थ्रू आर नॉलेज, थ्रू आर स्किल्स, through our learnings, through our specialities, through our expertise. So whatever we have gained and we are in process to gain, through those learnings and gainings, we want to make change in 10 lakhs lives. Why year 2031? 2031 से पहले हमें 10 लाख लोगों की जिंदगी में चेंज लाना है, एक पॉजिटिव चेंज लाना है, उन्हें इनेबल करना है टू लिव अ बेटर लाइफ। वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह बना सकें, उनके करियर को अच्छा बना सकें। उसके लिए हमें 10 लाख जीवनों में परिवर्तन लाना है, अपना योगदान देना है। ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। वेयर इन इसके साथ साथ ही इन 10 लाख लोगों से हमें, क्योंकि हमें सरवाइव भी करना है, हमें ऑफिस एक्सपेंसेस भी करने हैं, हमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी करने हैं, हमें चैरिटी भी करनी है, हमें लोगों की हेल्प भी करनी है, हमें अपने परिवार भी चलाने हैं, हमें अपनी जिंदगी भी चलानी है, हमारी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वो सारी चीजों को हमें क्या करना है, फुलफिल करने के लिए इन 10 लाख लोगों से अगले 2031 तक 10 लाख लोगों से करीब 254 करोड़, 250 करोड़ का हमारा टारगेट है। 250 करोड़ पैसा हमारे पास आएगा, ये हमारा एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। और वो 250 करोड़ में से हमारा पूरी प्लानिंग है, जो हो सकता है हम अगले कुछ लेसन्स में वो एक बार आपके साथ डिस्कस करें। 250 करोड़ रुपए आएगा। 250 करोड़ कहां कहां से आएगा, कैसे कैसे खर्च होगा, वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग है। बट अगर मैं उसे बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है 10 लाख जिंदगियों में परिवर्तन लाना, और मनी उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा फॉर श्योर। हम उनसे पैसे भी लेंगे, कुछ लोगों से पैसे लेंगे, कुछ लोगों को हम फ्री में सर्विस देंगे। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब आपको ये देखना है कि मेरा अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्यों है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव का पर्पज इसलिए है ताकि आपके सामने हमेशा एक टारगेट हो। जब आपके सामने एक टारगेट होगा, ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये सक्सेस का मंत्र है कि जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, मंजिल नहीं होगी, तब तक आप रास्ते नहीं तलाशोगे। आपकी एनर्जी, आपका एक्सपर्टाइज, आपका टाइम, ये सब अलाइन नहीं होंगे एक स्पेसिफिक चीज को अचीव करने के लिए। जब तक एक डेडिकेटेड टारगेट नहीं है, एक डेडलाइन नहीं है, एक टाइम बाउंड अप्रोच नहीं है, तब तक हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा मनी सब डिस्क्रीट रहेगा, फैलता रहेगा। तो हमें एक टारगेट स्पेसिफिक लेना है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। मेरा एम है, मैंने बिजनेस सेटअप शुरू किया है या मैं बिजनेस सेटअप शुरू करना चाहता हूं, तो करना क्या चाहता हूं जिंदगी में। ये बात बड़ी अटपटी सी हो सकता है आपको लगे। यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस टुडे, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में ये क्या डिस्कस हो रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको सेट करना है अपना, यानी आपको पहला काम ये करना है आज का, कि आज अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप सेट कर देंगे कि मुझे क्या करना है और कब तक करना है। प्लीज मेक इट टाइम बाउंड सो दैट यू शुड नो व्हेन यू हैव टू डू what is required to be done, why, which month, which week, which year, कौन से साल में किस समय तक आपको क्या परफॉर्म करना है। ये सब आपको जब पता चलेगा जब एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे। तो यहां दो चीजें हैं, करना क्या चाहते हो, कितने लोगों के लिए। अल्टीमेटली आप लोगों के लिए ही काम करोगे या पैसे के लिए काम करोगे। कोई बुराई नहीं है, आप पैसे के लिए भी काम कर सकते हैं। आप पैसे का फिगर भी लिख सकते हो कि आई वांट टू अर्न सो मच मनी।
आप इतना पैसा आप कमा सकते हैं। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसे इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ पीपल और इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं। पहली एक्सरसाइज आप ये करेंगे कि आप अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लें। अगर आपने पहले कर लिया है, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी 4 लोग हैं, अभी तक हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया है या अभी करना है? प्लीज चैट में लिख के बताएं। यस, काइंडली शेयर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अच्छा, संतोष जंगम जी ने कर लिया। यस, लक्ष्मी श्रीनिवास जी वांट टू रीडिफाइन, ग्रेट। और यस प्लीज जितेंद्र जी और श्रीनिवास सुमन जी। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर हम दोनों भी एक साथ नहीं रख सकते। 5 लाख लोगों को ट्रेन करना है और उसके साथ 2 करोड़ रुपए भी कमाना है। हाँ, वो बिल्कुल, वो दोनों मर्ज हो, मिक्स होंगे। उसको मैं कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में, उसकी डिजाइनिंग में बताऊंगा। तो अभी तो सिर्फ हाँ, दोनों दोनों कर सकते हैं, पर उसमें से एक प्राइम रखना है, दूसरे को आप उसे सेकेंडरी रख सकते हैं। एक चीज प्राइम रखनी है। जैसे मैंने प्राइम या हमने प्राइम रखा 10 लाख जिंदगियों में परिवर्तन लाना, तो कभी हमें लगेगा फ्री में भी काम करना है तो हम फ्री में करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है। तो उससे हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ मिल नहीं रहा। टू ट्रेन 1-to-1 to as many as possible and earn money for charity। श्रीनिवास जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, बट ये स्पेसिफिक नहीं है सर। हम सॉरी टू से दिस, आप इसको स्पेसिफिक बनाओ। इसको कहीं ना कहीं आप टाइम बाउंड करें, और आप नंबर्स में कर सकते हैं, टाइम बाउंड कर सकते हैं, ताकि आपको प्रोग्रेस पता चलती चले। तो दैट इज द सबमिशन फ्रॉम आवर साइड। और जितेंद्र जी, आप प्लीज आज ही अपने दिमाग में जो आते हुए विचार हैं, इन विचारों को एक पेपर पे लाओ और उस पर लिखो। हो सकता है आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभी आपके दिमाग में आते हों, पर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लो जिसमें ये सारे छोटे ऑब्जेक्टिव समा जाएं। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लें, और इस पर हो सकता है टाइम लगेगा, एक दिन में अगर अभी नहीं है तो ये एक दिन में नहीं आएगा, बट अगर आपने दिमाग में ये बात दौड़ानी शुरू कर दी, इन केस यू स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स इट, तो ये फॉर श्योर जरूर आएगी। तो आप इसे प्लीज नंबर्स में कहीं डिफाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्रोग्रेस है। मैं अगले कुछ लेसन्स में आपको ये दिखाऊंगा कि उसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर किया जाता है, फैक्टर्स कैसे उसके मेजर किए जाते हैं। सो दैट इज। सर मैंने अगर सोचा आई ट्रेन 5 lakhs पीपल बाय 2025 और आई वांट टू अर्न 2 करोड़ बाय 2025। हाँ हाँ, मगर अभी मैं बोलता हूँ, मगर वो रियलिटी में कैसे लाए फिर? हाँ मैं बताता हूँ उसको। पहले उसके क्या करना है, शायद अगली क्लास में हम इसको इन डिटेल समझेंगे, पर आपने पूछा है तो मैं बता दूं। हाँ संतोष जी, आपने 5 करोड़ ही क्यों लिया, 50 करोड़ क्यों नहीं, और 1 करोड़ क्यों नहीं? ये आपके दिमाग में जो 5 करोड़ आया वो कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लो पहले। अब होगा क्या, अगर आपको 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ भी कमाना है, टारगेट रखना है, तो रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बट वो 500 करोड़ ऑटोमेटिक नहीं आएगा। उसको क्या होगा, आपकी लाइफ का आपको टाइम, अपना जो टाइम है, एनर्जी है, वो उसी मल्टीपल में खर्च करनी पड़े, डेडिकेशन उसी मल्टीपल में होगा। आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है और मेरे पास इतना टाइम है स्पेयर करने के लिए, इतने टाइम को स्पेयर करके मुझे लगता है कि मैं अपना ये टाइम स्पेयर करके और ऐसे काम करके मैं इतने पैसे कमा लूं कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, मेरी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। आपने अगर कहीं 5 करोड़ एस्टिमेट कर लिया, या 4 करोड़ कर लिया, 2 करोड़ कर लिया, 10 करोड़ कर लिया, अब पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कर दो इन टर्म्स ऑफ मनी।
या आप अपने एम्बिशन को एस्टिमेट कर दो कि मेरी जिंदगी में ये एम्बिशन है, यहां तक पहुंचने की है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, और मेरा पर्पज है कि मैं इतनी जिंदगियों में परिवर्तन ला दूं। इन दोनों चीजों को एक बार मैप कर दें, वो मैं आपको अगले लेसन में सिखाऊंगा। तो फिर ये 5 करोड़ आएगा कैसे, उसका प्लान करेंगे। जो 5 करोड़ आपने लिख लिया वो आएगा कैसे, इसकी एक प्लानिंग करेंगे। यस, ग्रेट। अभी श्रीनिवास जी ने लिखा टू ट्रेन 1000 मेंबर्स 1-on-1 इन वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी बाय 2025, अर्न मनी फॉर चैरिटी थ्रू माय ऑर्गेनाइजेशन आरटीजी एंड आरटीए। ग्रेट। अभी बहुत बढ़िया सर, 2 नंबर्स आपके आगे निकल के, बहुत अच्छी बात है। और चैरिटी का भी एक चैरिटी को भी अगर आप डिफाइन कर लें तो भी आपको पता चलेगा, चैरिटी में आपके पास मीटर रहेगा कि कितना हो गया कितना रह गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसको इन डिटेल में स्प्रेड करके बताऊंगा एग्जांपल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 2, व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट्स को पूरा सॉलिड कर लें, हिलाकर सॉलिड कर लें कि यही मेरे प्रोडक्ट है और मुझे उसमें कोई वेरिएशन नहीं लाना है। तो उन प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन कर लें। जैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया, लाइव ट्रेनिंग्स देंगे डिजिटल मार्केटिंग की, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग देंगे डिजिटल मार्केटिंग की, बुक्स से हमारी रेवेन्यू आएगा, रॉयल्टी आएगी, सेल आएगी, बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेशन से हमारे को रेवेन्यू आएगा, और करियर काउंसलिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, मेमोरी ट्रेनिंग, वैदिक मैथ्स, ये सब हमारे प्रोडक्ट हैं। इनसे किस किस प्रोडक्ट से हमें कितनी एक्सपेक्टेशन है, किस प्रोडक्ट पे कितना काम करना है, वो हमने आगे प्लान करना है। बट पहले मेरे प्रोडक्ट्स को फाइनल कर लूं, क्योंकि मेरे पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है और मैं उस लिमिटेड को ऐसे ही डिस्क्रीट नहीं कर सकता। मुझे उस टाइम और एनर्जी को कैसे स्प्रेड ओवर करना है, पहले मैं अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह लिख लूं। उन प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, किस प्रोडक्ट को मुझे कितना प्रमोट करना है, वो हम बाद में करेंगे। बट मेरे प्रोडक्ट्स एक जगह फाइनल हो जाएं, फिर मुझे दूसरी तरफ जाना नहीं कि अगर मुझे 5 करोड़ कमाना है 5 साल में, 2025 तक कमाना है, या वास्तु में 1000 लोगों को ट्रेन करना है, तो वो 1000 लोगों को ट्रेन करने में मेरा वास्तु एक प्रोडक्ट हो गया। बाकी दूसरा प्रोडक्ट अगर मुझे कोई एसोसिएशन में रखना है, कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना है, तो वो कौन सा होगा। इन चीजों को पहले ही पक्का कर दो 100%, ताकि जब आप मैदान में कूद रहे हो या मैदान में दौड़ोगे तब इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बट वो पूरब से पश्चिम ना हो। इट शुड नॉट गो ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल ही चेंज ना हो। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन करके फ्रीज कर दें प्रोडक्ट्स की लिस्ट कि ये प्रोडक्ट्स मेरे रहने वाले हैं, और फिर इस पर कैसे आगे काम करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तीसरा है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तीसरा है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है, क्योंकि आप जब मार्केट में उतर रहे हो प्रोडक्ट लेकर, तो दूसरे लोग भी उतर रहे हैं, और दूसरे लोग हो सकता है पहले से सेल कर रहे हैं। तो आप क्या स्पेशलिटीज लेके जा रहे हो जिनसे आप अपना हथियार बनाओगे, अपने टूल बनाओगे, जिससे आप अपने मार्केट को कैप्चर करोगे, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करोगे, लोगों को परसुएड करोगे कि वो आपको परचेज करें। ऐसी क्या विशेषताएं आप में हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि यही चीजें आपको मार्केट करनी पड़ेंगी। अब आपके पास कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे हमने डिफाइन किया कि हम मल्टी स्किल ट्रेनिंग डिलीवरी है, हम डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी डिलीवर करते हैं, हम बिहेवियरल ट्रेनिंग्स भी डिलीवर करते हैं, हम एजुकेशनल ट्रेनिंग भी डिलीवर करते हैं। तो हमारे पास मल्टी स्किल ट्रेनिंग डिलीवरी है। अब ये मल्टी स्किल ट्रेनिंग डिलीवरी हमारे पास क्या है, आज कोरोना था तो हमने डिजिटल मार्केटिंग को हाइक किया, हमें पता था क्या चलेगा। हमारा जो एजुकेशनल ट्रेनिंग्स थी वो हमारी बैकफुट पे जाएंगी थोड़ी सी, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हमारी 100% बैकफुट पे गई। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी को अपने ध्यान में नहीं रखते तो पूरा 5, 7, 8 महीने हमारे पास जीरो बिजनेस पे थे, बिकॉज कोरोना से पहले हम कॉर्पोरेट में प्ले कर रहे थे, बहुत हाई कॉर्पोरेट में प्ले कर रहे थे। हमारा जो परसेंटेज ऑफ डेडिकेशन था वो हमारा सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में था। देन हमने उस परसेंटेज को, उस टाइम ऑफ एनर्जी को हमने क्या किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग में लगाया, और फिर कॉर्पोरेट पे बहुत कम काम किया।
एजुकेशनल और डिजिटल मार्केटिंग पर लगाया। जैसे जैसे कोरोना जाएगा वैसे वैसे अब हमारा कॉर्पोरेट उठेगा और फिर हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स चलेंगी। दोनों, अब दोनों हैंड टू हैंड रहेगा। जैसे स्कूल कॉलेज उठ खुलेंगे हमारा एजुकेशनल वर्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम अगर एक टाइप की ट्रेनिंग डिलीवरी में होते तो हम एक टाइप की ट्रेनिंग डिलीवरी कभी भी डाउन आ सकती है, उस टाइम पर हम अपने आप को सस्टेन कैसे करें। हमारा तो पर्पज है लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना, और जो कुछ हमें आता है वही हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो अगर एक्स है हमारे हाथ में तो एक वाई ऑप्शन भी है, और वाई है तो जेड ऑप्शन भी है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमें अपने उद्देश्य की तरफ, हमें अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ है जैसा हम सोचते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, पीपल हैंडलिंग and versatility. We are not bound to a single thing. We are not stick to a single product. So we have versatility in our working. We have versatility in thinking. So that can be counted as a strength of ours. So that is one thing. And the patience. If something is not going to work, then we keep patience and we think for it. What was the drawback, what was the fault, what was the bug, what was the error when we planned it, or whether it was in our planning, whether it was in our preparation, or whether it was in our delivery. So we analyze this with the patience, and then we do correct it so that we think is with us. And these 5 things are really requirement of the business portfolio as we are working, वो हमारे पास है। तो इन 5 हथियारों के दम पर हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। ऐसे ही आपके पास क्या स्पेशलिटी है, आप इन स्पेशलिटी के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को आगे ले जाओगे। बाय द वे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई जहां स्ट्रगल करना पड़ा, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे आपके पास जो आपके मोटिव को हाई रखेंगे, जो आपके मोराल को नीचे नहीं आने देंगे। ऐसी कौन सी चीज है? बिकॉज बिजनेस में जाने के बाद बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज का मतलब है बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, बिजनेस संघर्ष सीखने के लिए भी है, स्ट्रगल करने के लिए भी है, अनफेवरेबल इवेंट्स को फेवरेबल कन्वर्ट करने के लिए भी है, बहुत अच्छा सीखने के लिए भी है। बड़ी लर्निंग्स देती है बिजनेस, जिंदगी और बिजनेस दोनों बड़ी लर्निंग देती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वॉट एवर यू हैव प्लान्ड वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो। जब आप रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स में जब आप संघर्ष करें तो आपके पास क्या मोटिव होगा, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, प्लीज आइडेंटिफाई दोज स्ट्रेंथ्स। तो ये स्ट्रेंथ आपके पास एक एग्जांपल है। देन द फोर्थ वन इज व्हाट रिसोर्सेज यू रिक्वायर एंड व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड। अब यहां बिजनेस प्लानिंग का ये लास्ट पार्ट है कि आपको ऐसे कौन से संसाधन हैं जो आपको चाहिए, व्हाट रिसोर्सेज योर बिजनेस सेटअप वुड रिक्वायर एंड व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड्स, सो दैट इज रिक्वायर्ड। अभी मैंने मोटा मोटा सा डाला है जिसको बहुत स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। सो द बिजनेस लाइक वी आर डूइंग, so this generally and basically would require a website, means your online office, because you are going to put your foot on online world. Then for online world you should have an online office, and that online office is known technically a website, or that is available with us. That is a requirement. Website is requirement which is available, so there is no gap. And electronic infra means we require couple of computers, laptops, printer, internet connections, and cameras, home studio, so that all we have in our hand, that is available with us. तो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी चाहिए वो हमारे पास है, उसमें कोई गैप हमारे पास नहीं है। टीम फॉर श्योर इट इज अवेलेबल, office that is available, a physical office is available with us, a team of people, team of hands, team of working people that is available with us, and electronic infrastructure is available with us,
एंड द कस्टमर कम्युनिटी। अब यहां ये बहुत बड़ी बात है, दिस फिफ्थ फैक्टर इज रियली सो मच इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। आपको काम करने के टाइम पर आपके पास काम शुरू करने के लिए, अगर आप शुरू करने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम ऐसे 100 लोग हों जो आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए तैयार हों। ऐसी लिस्ट आपके पास हो। 1000 लोग ऐसे हों जिनको आप मार्केट करें, और 100 लोग ऐसे हों जो आपके प्रोडक्ट को हैंड टू हैंड ले लेंगे। ये जो कम्युनिटी है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिजनेस शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। इतने लोग आपकी बिजनेस को परचेज करने के लिए, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के लिए ऐसी कम्युनिटी आपके पास अवेलेबल हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन केस यू हैव नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आपके हाथ में है, यानी 1000 लोगों की कम से कम लिस्ट आपने बना ली है, उसमें से 100 लोग आपको लगता है ये लोग हैं जो इमीडिएट या कुछ मेरे एंडेवर्स के बाद, कुछ प्रयास के बाद, कुछ प्रमोशंस के बाद, कुछ फॉलोअप्स के बाद ये मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं और ये आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। हमारे पास ऐसी एक कम्युनिटी अवेलेबल है। एंड द वर्किंग कैपिटल, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि काम शुरू करने के लिए, काम चलाने के लिए आपके पास कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे इन केस आपके हाथ में हैं तो आप पेशेंटली काम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचें कि इस महीने मैं कमाऊं, उसी से मेरा खर्चा चले, और जिस महीने मेरी इनकम नहीं हो उस महीने आप सोचें ये बिजनेस तो काम नहीं कर रहा, तो वो बिजनेस करने का सही तरीका नहीं है। यू शुड हैव सम फिक्स्ड अमाउंट वर्किंग कैपिटल इन योर हैंड, और जब तक आपने जो बिजनेस प्लानिंग की है उसके हिसाब से आपको जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बिजनेस आपकी रिटर्न्स नहीं देती, तब तक वो वर्किंग कैपिटल आपको काम करने को उतना सारा स्पेस देता रहे। ये जरूरत बहुत आवश्यक है। आपको ये देखना है कि मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, उतनी पूंजी को आप लेकर अपना काम शुरू करें, अथवा काम कर रहे हो तो उतनी पूंजी को आप अपना बैकअप बनाकर रखें। तो हमने ये एक बैकअप बनाया हुआ है, हमें 6 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल हमने रखा हुआ है कि अगर 6 महीने तक भी हमारा बिजनेस में से इनकम अर्निंग नहीं आती तो भी हम 6 महीने तक बिना अर्निंग के अपनी बिजनेस को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो भी बिजनेस इंफ्रा है उसको हम रन कर सकें। तो ये एक स्पेसिफिक आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 3 मंथ्स आपको वर्किंग कैपिटल आपको चलाने के लिए आपके हाथ में स्पेयर होना चाहिए, और मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं तो आप 6 मंथ। ये 4 बेसिक चीजें हैं बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की। क्या ये आपके पास अवेलेबल हैं अथवा इनमें कोई गैप है? अगर कोई गैप है तो प्लीज उसे आइडेंटिफाई करें, और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे इंडिविजुअल डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इट इंडिविजुअल ओवर टेलीफोन ऑल्सो। अगर आपको लगता है ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में हम शुरू में डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट। आपको लगता है कि हमें इंडिविजुअल डिस्कस करना है तो स्पेसिफिकली आपके अपने बिजनेस के लिए वी कैन डिस्कस इट। तो ये आज का एक इनपुट था कि हम अपनी बिजनेस प्लानिंग को रिव्यू कर लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन हमारी कितनी है, और फिर तीसरी क्लास में हम मार्केटिंग की तरफ शुरू हो जाएंगे। फिर हम मार्केटिंग चैनल्स को 1-on-1 डिस्कस करते जाएंगे। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस प्लीज जितेंद्र जी। सर आपने रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था जी सर, स्पेसिफाई थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा। रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव के बारे में ये था, बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या करना है अभी? नहीं सर अभी किया नहीं वैसे सर मेरा, हाँ सर करना है अभी। हाँ तो करना है तो आपको ये सोचना है कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ जी सर। और किस चीज की करूं। पहले तो क्यों करूं और किस चीज की करूं, यस सर। कि क्यों करूं और किस चीज की करूं। नहीं जैसे सर रिक्वायरमेंट में आपने कहा था अभी कि जैसे अपना, जैसे हम वो अपने खर्च पूरे करने के लिए एक कर सकते हैं, या फिर एक बड़े लेवल पे। नहीं, अब ये खर्च पूरे करने के लिए बिजनेस
का एक अलग तरीका है, आप कर सकते हो, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका खर्चे पूरे करने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो दुनिया कर रही है, आप वो भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। जी सर। पर आपका अगर कोई और एम है, ठीक है, आप क्या करना, अगर आपकी वॉन्डरिंग होती हो अभी, अब मन अगर इधर उधर भटकता हो, तो आज रात को एक डायरी पे ना सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख लो जो जो दिमाग में आते हैं। वो हो सकता है 1 हो सकता है 20 हो। उन सारी चीजों को लिख के और फिर मेरे साथ कल फोन पे एक बार बात करना, हम उसे स्पेसिफिक होकर उसमें से जो अनवांटेड है उसे कोशिश करेंगे कुछ हटाएं, और जो वास्तव में आपके इनसाइट से, आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स के साथ, आपकी भावनाओं के साथ जो जुड़ता हो, उन चीजों को रख के आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके कल सुबह आप मेरे को फोन कर सकते हैं जितेंद्र जी। किस टाइम सर? 10 से 12 के बीच में आई वुड बी अवेलेबल। अच्छा, ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर अभी एक दिन बाद होगा ना क्लास? एक दिन बाद, बुधवार को होगा। तो यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, यस। सर टाइमिंग सेम रहेगा? हाँ, अभी तो यही है, पर अगर बाकी सारे लोग जुड़ते हैं और कोई टाइम चेंज के लिए कोई बात होती है और हमारा स्लॉट खाली है तो हम देख सकते हैं। फिर एक बार सारे लोग आए, आज तो लोग ही 3 आए हैं, बाकी सब लोगों को इंडिविजुअल भी इन्फॉर्म कर दिया था, पर फिर भी शायद नहीं जुड़ पाए। तो आज शुरू होने वाला है, मालूम ही नहीं था सर। नहीं, मैंने अलग इंडिविजुअल अलग अलग भी मैसेज भेज दिया था मैंने, तो मैंने कहा अच्छा। शायद ग्रुप में सब लोग नहीं देख पाते, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो मैंने अलग से भेज दिया था। चलिए अगली बार, अगली वाली क्लास में शायद सब लोग आ जाएंगे, एक बार उनको फोन पे भी। ये डिजिटल का ग्रुप का नाम क्या है? इसका है V1 डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप लेवल 1। मैं इस पे अभी नवंबर तारीख डालो, DB मैं इसमें अभी दिसंबर डालो, दिसंबर। मैं DEC लिख दिया मैंने उसमें, ग्रुप में देखो अभी आएगा आपके पास, हाँ आ गया, आ गया। है ना, ये वाला, इसको पिन तो कर। ग्रुप का नाम ही B1 दिसंबर डिजिटल मार्केटिंग लेवल 1 ऐसा लिखो, फिर समझ में आएगा फिर। 1 डिजिटल मार्केटिंग ओके, डिजिटल मार्केटिंग लेवल दिसंबर। लेवल 1 लिखा हुआ है अब तो इसमें। हाँ लेवल 1 आया है, B1 आया है ना, मगर वो। हाँ हाँ, B1 है, B1 डिजिटल मार्केटिंग लेवल 1। ओके ठीक है, चलिए, ग्रेट। ओके, बाय। इसका PPT भेजेंगे ना आप? हाँ, नहीं PPT नहीं, मैं इसका ये क्योंकि मेरा आधा घंटा पहले गया ना, आधा घंटा में नहीं था। तो मैं आप ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें बस सिंपल इतना ही है, आधा घंटे में हमने बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। ये 4 असाइनमेंट हैं, यही पूरे करने हैं बस, बाकी तो कोर्स कैसे चलेगा वो डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ, ओके। ओके, थैंक यू बाय। लॉट, ओके, बाय।